भगवद गीता का अध्याय 12 श्लोक 11 से 20 तक। कर्तुम मध्योगमाश्रित सर्वकर्म फल त्याग ततः कुरु यतात्मान श्रेयो ही ज्ञान भयासा ज्ञान ध्यान न विशिष्यते ध्यानाकम फल त्याग शांतिर्निरंतरम अद्वेष्टा सर्वभूतानन मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धियो मद्भक्त समे प्रिय यस्मानोद्विजते लोको लोकानोद्विजते चया हर्षामश्मयोद्वेगर्मुक्तो यः सच मे प्रिय इनपेक्ष शुचिदिक्ष उदासीनो गत्वेथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय सम शत्रो च मित्रे च तथा मानापमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निदास्तुति मौनि संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरम तिर्भक्तिमान में प्रियो नर ये तु धर्मयामृतमिदम यथोत पर्युपास्ते श्रद्धाना मत्परमा में प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम Bhagavad Gita, chapter 12, verses from 11 to 20. If, taking recourse to the yoga of my realization, you are unable even to do this, then, subduing your mind and intellect etc., relinquish the fruit of all actions. Knowledge is better than practice without discernment, meditation on God is superior to knowledge, and renunciation of the fruit of actions is even superior to meditation, for, peace immediately follows renunciation. He who is free from malice towards all beings, friendly and compassionate, and free from the feelings of I and mine, balanced in joy and sorrow, forgiving by nature, ever contented and mentally united with me, nay, who has subdued his mind, senses and body, has a firm resolve, and has surrendered his mind and reason to me, that devotee of mine is dear to me. He who is not a source of annoyance to his fellow creatures, and who in his turn does not feel vexed with his fellow creatures, and who is free from delight and envy, perturbation and fear, is dear to me. He who expects nothing, who is both internally and externally pure, is wise and impartial and has risen above all distractions, and who renounces the sense of doership in all undertakings, such a devotee of mine is dear to me. He who neither rejoices nor hates, nor grieves, nor desires, and who renounces both good and evil actions and is full of devotion, is dear to me. He who deals equally with friend and foe, and is the same in honor and ignominy, who is alike in heat and cold, pleasure and pain and other contrary experiences, and is free from attachment, he who takes praise and reproach alike, and is given to contemplation and is contented with any means of subsistence available, entertaining no sense of ownership and attachment in respect of his dwelling place, and is full of devotion to me, that person is dear to me. Those devotees, however, who partake in a disinterested way of this nectar of pious wisdom set forth above, endowed with faith and solely devoted to me, they are extremely dear to me. Thus, in the Upanishad sung by the Lord, the science of Brahma, the scripture of yoga, the dialogue between Sri Krishna and Arjuna, ends the 12th chapter entitled, The Yoga of Devotion. यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि तू आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। बिना विवेक के अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष जो सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी, गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। यहाँ श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद योग शास्त्र के रूप में जाना जाने वाला शास्त्र भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद का 12वां अध्याय भक्ति का योग समाप्त होता है। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।